Hello everyone. Again welcome you all in the class of inverse trigonometric functions, class 12th CBSE. So in the previous class we have learnt about some of the properties, basically definition of inverse trigonometric function, what it is, and the properties related to the inverse trigonometric problems, that are what? The properties were sine inverse of sine theta is equal to theta when theta belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2, and same kind of domain and range we have got for cos inverse, tan inverse and the remaining inverse trigonometric functions. Similarly, the second property was sine of sine inverse x is equal to x and vice versa. The next sine inverse of minus x is minus sine inverse x. The same thing will be applied on tan inverse of minus x and cosec inverse of minus x. And cos inverse, cot inverse and sec inverse are having the same property as cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse x. Okay, and then we have learned about if I am having sine inverse x, so how to convert it in terms of cos inverse, then tan inverse, sec inverse, cosec inverse and cot inverse using this triangle. Okay, if you want to know in details about these property, you can go through the previous video. The next property I am starting is sine inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. This we are going to prove today. कैसा ये relation इन दोनों के बीच में कैसे आता है. And in the same manner, the next pattern is tan inverse x plus cot inverse x is also pi by 2, and sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2 under the conditions that x belongs to minus 1 to plus 1. And everywhere in the previous video you can see that everywhere wherever we are applying the conditions, we have to take care of the domain and range. Now here x belongs to R, x can be any real number, and for this case x belongs to minus infinity to minus 1, minus 1 is included, union 1 to infinity, as you are aware of the domain and range of cosec and sec inverse the x. Now we will be proving these things. First, one of the things I'll be proving one of the conditions, that is sine inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2 using trigonometric terms obviously. और जब ये आपका सॉल्व हो जाएगा तो बाकी भी आप उसी पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं. So let's go for the proof, and after that we will be learning some of the important questions and patterns of properties, the given properties that we have learnt earlier, basically property 1. Okay, let's go for it. Now the first proof I am starting. For the first one, we are having this as first property, second one and the third relation, they are the part of a single property. Okay, now let's go for it. We are having sine inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. How it comes? Let's see that. First of all, we will recall our knowledge of trigonometry, that sine 90 minus theta, this you have learned in 10th also. In place of pi by 2 you were writing 90 there. So sine pi by 2 minus theta is what? You are aware of this, no? This is cos theta. Okay, so if I have taken cos theta is equal to x, let cos theta is equal to x, then what will be theta? Theta will be cos inverse x under some conditions. Okay, so on putting the values here in this condition, what shall I get? I am getting sine pi by 2 minus
cos inverse x is equal to x, as we have assumed the terms earlier. And all these things are under the particular given condition. Okay, so अगर इसको follow नहीं कर रहा तो you can't apply that formula, beta, remind that thing. Here, since this inverse is existing, the condition is given to you under the condition, so we can write it as pi by 2 minus cos inverse x as sine inverse x. Here what have we done? We have taken sine inverse of the given condition on both the sides. Okay, we can't सीधे इसको डिवाइड कर दिया ले गए, ऐसा कुछ नहीं बोलते उसे. अप्लाइंग साइन इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स. सो वी हैव गॉट दिस कंडीशन. अब सॉल्व करते हैं. देखिए ज़रा क्या मिल जाएगा इससे आगे आपको. यू विल बी गेटिंग इट एज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2. ठीक है, यू हैव गॉट द फर्स्ट प्रॉपर्टी. इसी तरह से आप लोग जानते हैं कि tan 90 minus theta or pi by 2 minus theta is equal to cot theta, and sec 90 minus theta, or we can say pi by 2 minus theta, is equal to cosec theta. So using the same conditions you can prove these two properties as well. Okay, so you can try to get the answer like that. Let us solve the questions related to these properties. अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं जो जनरली ऑफ 1 मार्क और थोड़े से अगर ज़्यादा से ज़्यादा बड़े हुए तो 2 मार्क्स. इससे ज़्यादा इस पैटर्न के क्वेश्चंस वो नहीं आएंगे. सो वी आर हैविंग द फर्स्ट क्वेश्चन एज, अब मैनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन गेट ना. हियर वी आर हैविंग फाइंड एक्स इफ cos inverse 3 by 5 plus sine inverse x is equal to 1, if they are saying, or if I can say it is equal to pi by 2. First question directly I am taking. So you are aware of that condition कि sine inverse x plus cos inverse x ही होने से आंसर pi by 2 आता है, isn't it? If I am having x here, this also should be x. तो यहाँ से डायरेक्टली आपको x की वैल्यू क्या मिल जा रही है? वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू, क्या मिल रहा है बताइए ज़रा. वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 3 by 5. फॉर फुलफिलिंग दिस कंडीशन x बोथ शुड बी x, इजंट इट? वी हैव गॉट दिस आंसर. इसी तरह से छोटा सा एक क्वेश्चन हम और देख लें. फाइंड x में ही लीजिए, फाइंड x इफ, अब क्वेश्चन को घुमा दिया उन्होंने, लिख दिया सेक इनवर्स 2 plus cosec inverse x is equal to, अब इसके बाहर हमने ले लिया साइन लिख दिया and I'm getting the answer as 1. So यहाँ पे कहाँ pi by 2 आया? So we have to bring it like that. एक step और हमें करनी पड़ जाएगी. So in the solution what will we do? This is the solution of the condition. In the solution, what we have to do, I'll be taking sine inverse on both the sides. So I'll get sine inverse of sine, that will be removed because it is under the given condition it is mentioned. So I'm left with sec inverse 2 plus cosec inverse x is equal to sine inverse 1. And you are aware of sine कितना 1 होता है? Sine पाई बाई 2 इज 1. हमें कंडीशन फॉलो करनी है, साइन का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आना चाहिए एंगल की वैल्यू. सो हियर साइन इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाई 2, क्योंकि साइन पाई बाई 2 1 होता है. सो आई हैव गॉट दिस कंडीशन. अब यहाँ पे हमको इजीली दिख जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x is pi by 2, then both should be x. So from that I am getting x is equal to 2. Let me take the question again. I am taking sine of sine inverse 3 by 5
प्लस साइन इनवर्स 4/5. ठीक है. अब मुझे इसको इवेल्यूएट करना, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट प्रॉपर्टीज. उसका कुछ ना कुछ हम यूज़ करेंगे. यहाँ हमें भी कुछ दिख नहीं रहा, कोई और कंडीशन हमें मालूम नहीं. सो वी विल ट्राई टू गेट दैट कंडीशन, क्योंकि अभी π/2 वाला कंसेप्ट हमारे पास है. सो लेट अस ड्रॉ द ट्रायंगल. एक साइन दिख रहा है, दूसरे को कॉस में कन्वर्ट करके देखा जाए कितना मिलता है. सो आई एम ड्रॉइंग अ ट्रायंगल फॉर माई convenience. I am plotting here 4 and this is 5. What about this value? This will be t, isn't it? तो अब यहाँ पे अगर मैं कन्वर्ट करने जाऊँ तो मुझे क्या मिल रहा है? I am getting sine inverse of 3/5 plus sine inverse, cos inverse of 3/5. Using this condition I am getting this value. तो आपको साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 कितना मिल रहा है? दैट इज π/2. तो आई विल राइट इट एज साइन π/2 एंड द आंसर इज 1. ओके, सो इन दिस मैनर यू विल गेट द आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रूव. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that. So let us prove that 9π/8 minus 9/4 sine inverse 1/3 is equal to 9/4 sine inverse 2√2/3. The LHS of it. In the solution, I am starting with LHS. Let me take out the term which is common here. I'll start with 9π/8 minus 9/4 sine inverse 1/3. I'll take out 9/4 common. What am I left with? I'm left with π/2 minus sine inverse 1/3, children, isn't it? So we are aware of sine inverse x plus cos inverse x is equal to π/2. Then what about cos inverse x? It is π/2 minus sine inverse x. Using the property sine inverse x plus cos inverse x is equal to π/2. I'll be getting the answer as 9/4 cos inverse of 1/3. Okay, but the answer is in terms of sine inverse. So let us draw the triangle. For the next step, we will be drawing the triangle. If I have taken this as angle, cos inverse is based upon hypotenuse, we can say. So this is 1, this is 3. On solving using Pythagoras theorem, you are getting this as √8. That can be written as 2√2, isn't it? You are getting this value 9, 3 square minus 1 square. So I can convert this in terms of sine as 9/4 sine inverse. This is √8, or we can say it as per the question, demand of the question. I'll go for 2√2/3, which is our RHS, and hence proved. Okay, in that manner we are getting our answer. Remind us, for solving using this method, you have to draw the triangle in fair work only. उसको रफ की तरह मत सॉल्व करिएगा, उसको दिखाइए कि आपने क्या किया है. The next question is, if tan inverse x minus cot inverse x is equal to tan inverse 1/√3, you have to find x. Okay, so हमारे पास तो प्रॉपर्टी होती है tan inverse x plus cot inverse x is equal to π/2. So let us apply that property here. We are taking the solution as we are having tan inverse x minus cot inverse x is equal to tan inverse of, this is √3, children. tan inverse of 1/√3, आपको मालूम है ना tan inverse of 1/√3 क्या होता है? You will be getting tan inverse x minus cot inverse x is equal to π/6, because 1/√3 is 10 π/6.
नाउ दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. अभी तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिल नहीं रही, तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट कंडीशन, और वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द कंडीशन. लेट अस सी. आई एम टेकिंग द नेक्स्ट कंडीशन एज, यहाँ पे जो हमने लर्न किया था, tan इनवर्स x प्लस cot inverse x is pi by 2. Let us apply that condition. So what am I getting? Tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. Equation 2. On solving these two values, what shall I get? I'll be getting 2 times of tan inverse x is equal to So isn't it 2 pi by 3? Okay, this is 2 pi by 3. So what is the value of tan inverse x? Tan inverse x is pi by 3. In that manner I am getting x is equal to 10 pi by 3, and the answer is root 3. The next question is, if tan inverse x plus tan inverse y is equal to pi by 2, you have to find cot inverse x plus cot inverse y. What will be the value of these terms? Okay, इस टाइप की कुछ भी एंगल के साथ आपके पास क्वेश्चन आ सकता है. Let us go for it. I am solving it as tan inverse x plus tan inverse y is equal to pi by 2. Okay, here we are aware of the condition tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. Then tan inverse x can be written as pi by 2 minus cot inverse x. So I am taking it as pi by 2 minus cot inverse x plus again pi by 2 minus 10 cot inverse y. Okay, which is equal to pi by 2. Let us solve it. जब सॉल्व कर लिया तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए आप, cot inverse x plus cot inverse y is also pi by 2. तो इस तरह के डिफरेंट एंगल्स की जो भी कंडीशन दी हैं, आप उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसे सॉल्व कर सकते हैं. So this was your next property. Now I am going to solve some questions related to trigonometric substitutions and trigonometric different formula of trigonometry to solve the questions using generally the first property. Okay, so let's go for solving the questions. First, two types of questions we will be learning now. Two types of pattern we will be solving now. Let's go for the questions. The first question I am starting with. We can say evaluate in simplest form. Okay, we have to bring the given condition in simplest form. Only one single inverse term is there. उसे कैसे adjust किया जाएगा? So let us go for the question. First question is, I am having tan inverse of root over 1 minus cos x upon 1 plus cos x. This is my question. Single term is there. Okay, so only option to evaluate or bring it in simplest form is to apply the different conditions of trigonometries. Here the conditions are there with you beta. यहाँ पे conditions क्या given है आपको? Condition is 0 is less than x is less than pi. You can get another condition also, 0 minus pi is less than x is less than 0. This can be, or you can get the question related to combination of these two. Okay, so you can get minus pi to x is less than x is less than pi also. So let us try to solve these questions. Let's see. अभी मुझे यहाँ पे simplest form में लेके आना है. You are aware of, आप लोगों को हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में बताई जाती है कि whenever you are learning the formula, multiple angle forms are very 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 important for you. So the first form that we are knowing that 1 minus cos 2 theta, ये दो तीन forms आपको हमेशा याद रखने होते हैं. 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. Similarly 1 plus cos 2 theta is
2 cos square theta and sin 2 theta we are aware of is 2 sin theta cos theta. यहाँ पे कंसेप्ट क्या है आपका कि जो भी आपका यहाँ पे एंगल दिया हुआ है इन LHS उसका हाफ RHS में आता है. इज इट ओके? सो सेम कंडीशन इज फॉर अदर फॉर्मूला ऑल्सो. सो जब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू x है, आई एम हैविंग 1 माइनस कॉस एक्स इन प्लेस ऑफ 2 थीटा आई एम हैविंग x. तो उसका राइट साइड में उसका आंसर क्या होगा? इट विल बी हाफ ऑफ इट, दैट इज x by 2. सो व्हाट कैन आई राइट हियर? I can write tan inverse of root over 2 sin square x by 2 upon 2 cos square x by 2. On simplifying it, I am getting tan inverse of, याद रखिए बेटा, रूट के अंदर tan स्क्वायर है. ओके, तो जब भी हम इसका आंसर निकालेंगे I'll be getting mod of tan x by 2. ओके, I'm getting the answer as mod tan x by 2 root solve करने से. Now here we will go for the condition. What is the condition which is mentioned over there? The condition is the angle is lying in 0 to pi form. अच्छा, वी नो दैट हियर द कंडीशन इज, पहले अगर मैंने कंडीशन ले ली 0 to pi में है, x इज बिलोंगिंग इन बिटवीन 0 and pi. तो अगर x 0 and pi के बीच में लाई कर रहा है तो व्हाट अबाउट x by 2? वी हैव टू डिवाइड ऑल साइड्स बाय 2, तो आई विल बी गेटिंग pi by 2. आपको देखना है x इज lying in between 0 and pi by 2, मतलब in the first quadrant. So since it is in the first quadrant, 10 will always be a positive quantity and I'll get the answer as tan inverse of 10x by 2. Since the conditions are following, ये first quadrant में lie कर रहा है, so tan inverse की भी condition follow होती है and I'm getting the answer as x by 2. ठीक है? If I have this condition with me, or if I have minus pi is less than x is less than 0, so what to write? अब देखिए ज़रा, यहाँ पे आपने निकाला, आपको x by 2 लाना है ना, so x by 2 will lie in between minus pi by 2 and 0. तो minus pi by 2 and 0 quadrant rule याद रखिएगा हमेशा. This is minus pi by 2. This is 0 and pi by 2 for sine 10 and cosec inverse. Okay, so जब यहाँ पे लाई कर रहा है तो this is in the fourth quadrant. Fourth में 10 की वैल्यू क्या होती है? It will always be a negative quantity. So I'll get this as tan inverse of minus 10x by 2, and you are aware of tan inverse of minus x works like as sine inverse of minus x, which is minus tan inverse x. So I'll get minus tan inverse of 10x by 2 and the answer again is minus x by 2. So देखिए, जैसी आपको प्रॉपर्टी दी है उसके हिसाब से आप वर्क करिएगा, you will get your answer. Okay, so let's go for the next one. यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री is a very important topic. एक बार आपने पढ़ना शुरू किया, if you are going in the field of maths, हमेशा आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता ही है. तो बेसिक फार्मूला मस्ट बी, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ बेसिक फार्मूला. ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन एज tan inverse of cos x upon 1 plus sin x. This is my next question and the condition given to you as minus pi by 2 is less than x is less than pi by 2. कुछ conditions क्वेश्चन में given रहेंगी, उसको भी यूज करिए and accordingly get your answer. So here again I am having the basic formula cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta. तो मैं इसे यूज कर सकती हूँ यहाँ पे. So I'll be getting the answer as tan inverse of cos 2 theta की जगह अगर मैंने काम किया, I'll get the half of the angle with the condition cos square x by 2 minus sin square x by 2 upon
अब देखिए बेटा यहाँ पे साइन एक्स, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा. आई कैन राइट 1 एज कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि हमें मालूम है आइडेंटिटी है. और यहाँ पे एंगल हम लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2. दिस कंडीशन वी कैन राइट. सो यहाँ से मुझे क्या मिल गया टर्म? आई विल गेट tan inverse of cos square x by 2 that can be put in a formula a plus b a minus b. And this will be cos x by 2 plus sin x by 2 the whole square. ओके, प्लस है, मैंने साइन पहले लिखा, कॉस पहले लिखा, इट डिपेंड्स प्लस होने से. बट इफ इट इज हैविंग माइनस तो वी हैव टू कंसिडर द कंडीशन. नाउ सी दिस थिंग. On solving, what am I getting? I am getting tan inverse of cos x by 2 minus sin x by 2 upon, what is our value? Just see beta, we are having the value as cos x by 2 plus sin x by 2. अब इसे और एक प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे हम. क्या करना होता है यहाँ? ईच एंड एवरी टर्म यू आर डिवाइडिंग, यू हैव टू डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय cos x by 2. देखिए उससे एक फॉर्म आएगा आपके पास में, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन एक्स बाई 2. अगर आपने सारे टर्म्स को यहाँ पे cos x by 2 से डिवाइड किया, यू गॉट 1 sin by cos is 10x by 2. Then similarly 1 plus 10x by 2, and you are aware of this formula. It can be written as tan inverse of 10 pi by 4 minus x by 2. अगर आप इसे आपको मालूम है कि tan a plus b का फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में लर्न किया है, द सेम फॉर्मूला आई एम यूजिंग हियर. ओके, ऑन अप्लाइंग कौन सा फॉर्मूला? दैट इज tan a plus b इज इक्वल टू, व्हाट इज इट? tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. We are aware of this formula, isn't it? और अगर यहाँ माइनस हो गया तो साइन विल चेंज अकॉर्डिंगली. You will be getting this as minus. If this is minus, this will become plus, isn't it? तो उसी तरह उसी फॉर्म को यूज़ करके हमने ये आंसर ले आए. अब आंसर क्या आएगा? Whether we are getting the answer as वैल्यू जो आ रही है आपकी, देखिए यहाँ से दिख रहा है tan इनवर्स ऑफ 10. तो जस्ट चेक द वैल्यू. यहाँ पे आपके पास कंडीशन दी है माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन पाई बाई 2. हमें क्या चाहिए? माइनस ऑफ एक्स चाहिए ना, हमें तो माइनस एक्स बाई 2 चेक करना है. सो लेट अस गो फॉर माइनस एक्स. अगर मैंने साइन चेंज किया, यू हैव लर्नड इन इनइक्वालिटीज़ दैट जब आप साइन चेंज करते हो तब आपका इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाता है. सो लेट अस गो फॉर दिस कंडीशन. मुझे इसमें क्या मिल रहा है? आई एम हैविंग माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन एक्स is less than pi by 2. जब इसमें साइन चेंज किया तो अगेन आई एम गेटिंग माइनस पाई बाई 2, लेस देन माइनस एक्स लेस देन पाई बाई 2. साइन इंटरचेंज हो गया. What about similarly minus pi by 4 is less than minus x by 2 is less than pi by 4, and if I'll add pi by 4 in it, I'm getting 0 is less than pi by 4 minus x by 2 is less than pi by 2. So this condition is satisfying the condition property of tan inverse. No, tan inverse of 10x will be x if and only if 10 lies in between the open interval minus pi by 2 to plus pi by 2. X lies, isn't it? So here we have got the same condition. यहाँ आ गया मेरा आंसर 0 and pi by 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होने चाहिए वैल्यू. So it is belonging to the first quadrant, so our answer is correct. So what is our answer here? We are getting the answer as pi by 4 minus x by 2. The question is cot inverse of root over 1 plus sin x plus root over 1 minus sin x upon root over 1 plus sin x minus root over 1 minus sin x.
So see the condition here, which is 0 is less than x is less than pi by 2. This condition is given to you. Here x is lying in between the first quadrant, in the first quadrant. Okay, so let us apply the condition. You must have learnt last year, your teachers must have told you about it. 1 plus sin x, जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी देखा, 1 plus sin x can be written as cos x by 2 plus sin x by 2 the whole square. Similarly, 1 minus sin x can be written as cos x by 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 द होल स्क्वायर. अगर आप सॉल्व करें पिछला कंडीशन देखते हुए, पिछला क्वेश्चन यू हैव सीन दैट ना, तो उन क्वेश्चन को देखते हुए जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस कंडीशन. तो आई एम डायरेक्टली पुटिंग द कंडीशन. आप एक्सपैंड करिए, इन प्लेस ऑफ 1 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 पुट करिए, यू विल गेट दिस कंडीशन. सो लेट अस राइट, आई एम गेटिंग कॉट इनवर्स ऑफ, दिस इज कॉस x by 2 plus sin x by 2. I am taking this value क्योंकि उसका स्क्वायर है. अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसा लिखें पहले वैल्यू को. वी आर गेटिंग रूट ओवर cos x by 2 plus sin x by 2 the whole square plus root over cos x by 2 minus sin x by 2 the whole square. Similarly, the next term is cos x by 2 plus sin x by 2 the whole square minus root over cos x by 2 minus sin x by 2 the whole square. Children, यहाँ पे अभी आपका थोड़ा ट्विस्ट आता है क्वेश्चन में. कैसे? इस समय आपकी कंडीशन आपको हेल्प करती है. लेट अस गो फॉर द थिंग्स. देखिए ज़रा, अगर आपके पास a माइनस बी द होल स्क्वायर है, सो दिस कैन बी इक्वल टू b माइनस ए द होल स्क्वायर भी ना. पर यहाँ सोचने की बारी कब आती है? जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं. तो आंसर में a माइनस बी आना है कि b माइनस ए आना है. इफ़ यू विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ इट, तो वेदर यू आर गेटिंग a माइनस बी और b माइनस ए, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है कि बोथ द आंसर्स यू आर गेटिंग. ओके, सो यहाँ पे हमें इन कंडीशंस को जो हमको दी हुई हैं उन कंडीशंस को यूज़ करना है हमें. देखिए ज़रा कंडीशन क्या दी हुई है. सो यहाँ पे जब हमारे पास प्लस का साइन है, इफ़ आई आर हैविंग द प्लस वैल्यू, तो आई कैन डायरेक्टली प्लस में तो मैं आराम से लिख सकती हूँ. डायरेक्टली वी कैन राइट cos x by 2 plus sin x by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है. बट for this condition we will be taking 0 is less than x is less than pi by 2 है. So what about x by 2? 0 is less than x by 2 is less than pi by 4 will be there. Okay, मतलब 0 x is lying in between 0 and pi by 4. थोड़ा सा याद कर लीजिए cos की वैल्यू को और साइन के डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू को. 0 से pi by 4 के बीच में कौन छोटा होता है और कौन बड़ा होता है. So you must be aware of कि 0 to pi by 4 cos is bigger than that of sin. So I will be getting cos x by 2 greater than sin x by 2, and that can be, now this condition will be applied here and I am left with क्या मिल रहा है, cos x by 2 minus sin x by 2 upon cos x by 2 plus sin x by 2 minus cos x by 2 plus sin x by 2. I have just take care of sin also. Okay, so we are getting the answer as cot inverse of cos. जब हम सॉल्व कर लेंगे, एक स्टेप आप करिए, cos x by 2 मिलेगा और डिनोमिनेटर में आपको sin 2 टाइम्स मिलेगा. 2 will get cancelled. I am left with this value. और मुझे क्या मिला, cot inverse of cot x by 2 and using the condition I am getting what answer. देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. cot इनवर्स 0 से पाई के बीच में लाई करता है ना कंडीशन के लिए, वेयर x शुड लाई इन बिटवीन cos इनवर्स. जब cot ऑफ x by 2 है, एंगल शुड लाई इन बिटवीन. फॉर cot to be an inverse function, angle lies in between 0 and pi, isn't it? तो
यहाँ पे कंडीशन फॉलो कर रहा है, वो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. सो आई एम गेटिंग द आंसर एज x/2. ओके डियर चिल्ड्रन, सी दिस थिंग, दिस इज द वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. बस रिमाइंड दैट कि यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ क्या हैं एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट योर आंसर. इसी तरह से इसी पैटर्न में अगर आपके पास वैल्यू इनके सेम क्वेश्चन में आपके पास एक, आप अपने लिए उसको याद रखिएगा, अगर वैल्यू π/2 से पाई के बीच में होती, इफ द वैल्यू लाइज इन बिटवीन π/2 एंड पाई, क्योंकि कॉट तो 0 से पाई होता है ना, तो किसी भी क्वाड्रेंट में आंसर आ सकता है. सो व्हाट टू गेट, देखो यहाँ पे अगर आपने इसको कन्वर्ट किया x/2 लाया तो ये गेटिंग π/4 इज लेस देन x/2 इज लेस देन π/2. तो आप देखिए 45, π/4 मतलब 45 से 90 तक जाते हुए कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, वेदर cos x/2 इज ग्रेटर और साइन. तो हियर द टर्म्स चेंज, यू आर गेटिंग द वैल्यू cos x/2 इज लेस देन sin x/2 चिल्ड्रन. ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे साइन में फ़र्क आ जाएगा. यू विल बी गेटिंग द आंसर एज क्या मिल जाएगा, अगर आपने इसी को सॉल्व किया और पार्ट से, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे cos x/2 प्लस sin x/2 तो रहेगा, बट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यू विल बी गेटिंग cot इनवर्स ऑफ cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 plus sin x/2. The value will be negative, isn't it? So I'll get the denominator also in the same manner. So I'll left with, अगर आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, cot inverse of 10 x/2 मिल जाएगा आपको, isn't it? When the सो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 10 x/2, तो उसे कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट रूल. आई विल राइट कॉट, मुझे कॉट के साथ कॉट ही चाहिए ना, कॉट इनवर्स के साथ आई शुड गेट कॉट. तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, आई विल राइट इट एज कॉट 90 माइनस थीटा. ओके, यू आर अवेयर ऑफ कॉट 90 माइनस थीटा इज साइन 10 थीटा. तो you can get the answer as π/2 minus x/2. So everything depends on these values कि आपने क्या assume किया है. आपके पास 0 से π/2 है तो एक आंसर आया, and π/2 to पाई है अगर x, तो you are getting the other answer. ठीक है, okay, let's go for the next pattern of the questions, trigonometric substitutions. Some standard substitutions we are applying here to solve the questions. Trigonometric substitutions. अब आपको ऐसे कौन सी वैल्यूज़ है जिन्हें पुट करने से आपका क्वेश्चन, जैसे अभी आपने कहा यहाँ पे दिया था आपके पास cos sin सारी वैल्यूज़ थी, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई किए एंड देन यू हैव गॉट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो इसी तरह से कुछ और चीज़ें अगर मैं पुट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आ पाऊँ तो लेट अस गो फॉर इट. द फर्स्ट सब्सटीट्यूशन इज़, अगर मेरे पास क्वेश्चन में कहीं भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर पैटर्न दिया हुआ है, सो आई शुड कीप x is equal to cos थीटा और sin थीटा एज पर द डिमांड ऑफ क्वेश्चन. ये सब्सटीट्यूशंस आप याद रखिए एंड देन यूजिंग दैट यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली. ओके, सो द नेक्स्ट इज, ये सब्सटीट्यूशंस मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आपके लिए जो आप याद रखेंगे एंड फिर उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, लेट्स गो फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशंस. Okay, let's go for the first one. First case, as I told you, 1 minus x square मेरे पास अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कहीं भी और मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, so as per the demand of the question we can put x is equal to sin theta और cos theta as you. इसमें सारे के सारे जो सब्सटीट्यूशंस हैं इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, you are aware of ना, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, then 1 plus tan square theta
is equal to sec square theta and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. ये तीन चीज़ों का यूज़ करके सारी आइडेंटिटीज़ बनती हैं हमारी, जो सब्सटीट्यूशन की आइडेंटिटीज़ है. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. अगर मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस, आई एम हैविंग द क्वेश्चन एज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, तो उसी प्रॉपर्टी को हमें यूज़ करना. हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में दिख रहा है, बट हमें ए हटाना पड़ेगा, तभी हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अप्लाई कर सकते हैं. सो व्हाट टू पुट, आई विल बी पुटिंग द वैल्यू एज एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा इन दिस कंडीशन. ओके, द नेक्स्ट कंडीशन इज based on the second property. If I have 1 plus x square, so I'll be putting what? I'll be putting x is equal to tan theta or cot theta as per the demand of the question. Similarly, a square plus x square, if I'm having, I can put x is equal to a tan theta or a cot theta. Okay. In the same manner, the third property is, अब ये नहीं तीनों का पहले प्रॉपर्टी यूज कर लें, then we will go for the new one. So here, if I am having x square minus 1, in case मेरे पास 1 minus x square नहीं है, I am having x square minus 1. So और रूट में भी आ गया या कुछ ऐसे टर्म्स आ गए कि मुझे इसमें ही वैल्यू पुट करनी है, तो what to do? I'll be putting x is equal to sec theta or cosec theta as per the demand of question. And if I have x square minus a square, I can put x is equal to a sec theta और a cosec theta. ठीक है, अब इसी टाइप की प्रॉपर्टीज में अगर मेरे पास एक कोई पैटर्न आ गया, I have only 1 minus x, only 1 minus x. ठीक है, तो आई कैन पुट वॉट, और a माइनस एक्स भी इसी तरह से वर्क करेगा आपका. आई कैन पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ओनली इफ 1 माइनस एक्स इज देयर, इजंट इट. और a माइनस एक्स के लिए भी अगर आया तो क्या पुट करोगे आप, a साइन स्क्वायर थीटा और a cos square theta and vice versa for tan and sec, substitution of tan and cosec, tan cot cosec sec can also be done in this pattern. Now a very important term, just see children, we are having the next property as, in case you are having root and with root you are having both the signs 1 minus x 1 plus x. ठीक है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे. अब यहाँ पे अगर आपने x की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, तो आपको 1 प्लस एक्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए इन प्लेस ऑफ x यू हैव टू राइट tan स्क्वायर. तो एक x की दो वैल्यूज तो हम नहीं पुट कर सकते. सो वी हैव टू सर्च फॉर वन ऑफ द वैल्यूज सो दैट द बोथ द कंडीशन कैन बी सॉल्व्ड, है ना, बोथ द कंडीशंस कैन बी सेटिस्फाइड. सो रिमाइंड दैट वी हैव लर्नड अबाउट cos 2 theta. We are aware of 1 minus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta, 2 sin square theta, and 1 plus cos 2 theta is what? 2 cos square theta. तो अब यहाँ हम पुट करेंगे जब दोनों ही प्लस माइनस में साइन है एंड वी आर हैविंग स्क्वायर रूट ऑल्सो. ये दो जो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी और इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी 6, उसको बहुत अच्छे से याद रखिए. वी आर हैविंग दिस प्रॉपर्टी, put x is equal to cos 2 theta और cos theta, पर जहाँ पे cos theta पुट किया तो हमें एंगल का हाफ करना पड़ेगा ना, तो theta is better, 2 theta is better. So we will be putting this value. In case यहाँ पे प्लस माइनस ऊपर नीचे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटरचेंज हो सकता है. Similarly, if you are having the question as root over a minus x square or a square minus x square upon a square plus x square, बट इन a square भी आ गया, बट इन प्लेस ऑफ x वी आर हैविंग x square ऑल्सो. यहाँ भी x square हो सकता है, बट हमें तो cos 2 theta ही चाहिए ना. सो व्हाट टू पुट, आई विल बी पुटिंग x square is equal to a square cos 2 theta. This is not, this shouldn't be
x is equal to, this should be x square is equal to a square cos 2 theta, so that a will come out as common, it will get cancelled, and ultimately the required formula we can get, so that we can simplify the term. ठीक है, ये तो बात हुई आपकी रूट वाले टर्म्स की. इन केस आपके पास रूट नहीं है, you are having the question like this. Again, it's an important concept, children. You are having 1 minus x upon 1 plus x, और इसी टाइप की कोई भी कंडीशन आपके पास आ गई विदाउट रूट, बोथ द साइंस आर देयर विद यू. तब आप कैसे करेंगे? तब आपने पुट करना है x is equal to tan theta. If you will be writing x is equal to tan theta, तो आपने अभी एक फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा है, 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta will give you 10 pi by 4 minus theta. Similarly, 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta is like that, 10 pi by 4 plus theta is 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta. You can check in, you can put the formula and check of trigonometry. a plus b वाला फॉर्म अगर आप अप्लाई करेंगे, वैसे ही यहाँ पे माइनस साइन के साथ भी अभी मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, दिस वी कैन गेट फ्रॉम हियर, isn't it? तो ये सब्स्टिट्यूशन, दीज एज यू नो दैट कि मैथ्स में जो चीज़ें आती हैं, जो फॉर्मूला आप लर्न करते हैं, आप शुरू करते हैं एक बेसिक फॉर्मूला से, उसके बाद उसका हेल्प के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाए आ जाते हैं ना, ताकि आपका काम, आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए. सो ये वही कंसेप्ट्स हैं जो हम क्वेश्चन अब सॉल्व करने जा रहे हैं. वो इन क्वेश्चन फॉर्मूला का, इन सब्स्टिट्यूशंस का यूज़ करके बहुत ईजीली यू विल कम टू सॉल्व, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी ईजीली. लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस नाउ. सो रिमाइंड दीज प्रॉपर्टीज, हम इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं. लेट्स गो फॉर इट. So the first question that I'm starting, do I evaluate or again bring it in simplest form? The first question is, this is tan inverse of x upon root over a square minus x square. See children what you have got. यहाँ हमें मिल सकता है क्वेश्चन minus a is less than x, कंडीशन हमको ऐसी दी हुई है, और यू कैन गेट द कंडीशन एज मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए. दोनों का ही कंसेप्ट सेम है, आपने इनइक्वालिटी में पढ़ा है. इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, देन माइनस ए, एक्स लाइज इन बिटवीन माइनस ए एंड प्लस ए, नॉट इंक्लूडेड. यस, सो यू कैन गेट दिस ऑल्सो, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन द क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स अप्लाई द कंडीशन. अब देखिए ज़रा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इनमें से कौन सी कंडीशन यूज़ हो सकती है. यू आर हैविंग ओनली प्लस माइनस में आपके पास एक ही माइनस साइन है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पैटर्न इज देयर विद यू. कहाँ है? दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पैटर्न. तो व्हाट वी हैव टू पुट, तो वी विल बी पुटिंग इन सोल्यूशन लेट एक्स इज इक्वल टू. अब देखिए आपको क्वेश्चन की डिमांड भी देखनी, थोड़ा क्वेश्चन भी देखना है कि आपके पास बाहर क्या है. यू आर हैविंग 10. ओके, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा. सो यू आर हैविंग 10, तो अगर अंदर मुझे ब्रैकेट में 10 मिल जाए तो इजीली आई कैन गेट द आंसर ना. तो क्या आएगा, अगर मैंने x को साइन बाय कॉस आई एम अवेयर ऑफ इज 10, तो मुझे न्यूमरेटर में साइन चाहिए, तो आई विल बी टेकिंग x एज a साइन थीटा. ओके, क्यों चाहिए a? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में a दिया हुआ है. सो आई विल बी पुटिंग द वैल्यू लाइक दैट. तो क्या मिला मुझे, अब मैं पुट करती हूँ वैल्यू, तो व्हाट शैल आई गेट, दैट इज tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. जब आपने a स्क्वायर कॉमन निकाला, अब रूट से बाहर आके वो a बन जाएगा. आई एम गेटिंग द आंसर एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज गिविंग अस द आंसर एज कॉस स्क्वायर थीटा. तो अल्टीमेटली ऑन सॉल्विंग व्हाट एम आई गेटिंग, tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा. आप ट्रिग्नोमेट्री से इतने अच्छे से फेमिलियर हैं, दिस इज द 10th वर्क, ये आप कर सकते हो आराम से. So now the answer is tan inverse of tan theta. Okay, और यहाँ जब मैंने x is equal to a sin theta assume किया, तो मुझे थीटा की वैल्यू भी निकालनी, कभी ना कभी यूज़ होगी. थीटा इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए उसे एज्यूम किया. सो वी हैव टू हमको उसे हटाना भी पड़ेगा. तो कैसे निकालते हैं वैल्यू, पहले सभी एक चीज़ आपको थीटा चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक a टू दैट साइड. अब a ले गए, उसके बाद फिर साइन इनवर्स को इस तरफ लेके आइए.
तो आपको थीटा मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपने ए लिया, तो क्या बचा आपके पास, x बाय ए आप लेके आए। अब साइन को जब आप यहाँ पे अपने को साइन थीटा को हमें कन्वर्ट करना है, वी रिक्वायर्ड थीटा ओनली, तो कैसे हट जाएगा साइन, जब हम दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे। सो आई विल बी गेटिंग साइन इनवर्स ऑफ x, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय ए। यहाँ भी कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं, दे यूज टू राइट 1 बाय ए साइन इनवर्स x, डोंट डू दैट चिल्ड्रन। एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, इट विल बी, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ओके, तब जब हमारे पास वैल्यू मिल गई, वी हैव गॉट अंडर द कंडीशंस, वी हैव गॉट थीटा एज द आंसर एंड थीटा इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन का पार्ट में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में x1 a है ना, सो वी विल बी राइटिंग इट एज साइन इनवर्स x बाय ए। ओके, सो दिस इज योर आंसर। तो आपने एक थोड़े से लैंडियर और कॉम्प्लिकेटेड टर्म को आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया यूजिंग द सब्स्टिट्यूशंस। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम हैविंग एज cos inverse of, this time we are having cos inverse x upon root over x square plus 1, ठीक है, this value is there with us. Now the condition is x is lying, अब अगर कंडीशन दी है नहीं दी है, डिपेंड्स, आपका आंसर लेके आना है, आपको किस वैल्यू के बीच में लाई करेगा, देखते हैं ज़रा हम। लेट अस गो फॉर इट। अब यहाँ पे भी देखिए cos है, वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आएगी, x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही आना चाहिए। लेट अस गो फॉर इट। तो वी आर गेटिंग द आंसर, और लेट अस टेक दिस क्वेश्चन एंड आई एम हैविंग x स्क्वायर प्लस 1 विद मी, है ना। सो विच वैल्यू वी हैव टू पुट, यहाँ पे 1 + x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1 है, तो वी कैन पुट tan थीटा और cot थीटा। अब यहाँ पे cos है ना, तो देखिए ज़रा 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या आएगा। इफ़ आई पुट tan थीटा आई एम गेटिंग साइन बाय cos एंड 1 + tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, साइन इज लेफ्ट। इन केस आपने पुट कर दिया, जस्ट देखिए ज़रा, ऐसा कुछ नहीं कि आप कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते, अगर आपने शुरू कर दिया तो डोंट कट इट ऑफ। हम कोशिश तो करते हैं कि सिंपलेस्ट पैटर्न में आंसर आ जाए, बट समझो आपने यहाँ पे, आपको लगा कि मुझे x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करना चाहिए यहाँ, एंड सो दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो आपने पुट किया, तो यू हैव गॉट cos इनवर्स ऑफ tan थीटा अपॉन, यहाँ पे आपने पुट किया 1 + tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, यू आर अवेयर ऑफ। तो यहाँ पे सॉल्व करने से मुझे sec थीटा मिल गया आंसर। एंड व्हाट अबाउट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इट, और कैलकुलेशन से मुझे क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स ऑफ sin बाय cos, 1 बाय cos और sin थीटा मिल गया मुझे यहाँ। एंड द कंडीशन इज व्हाट, अब जब आप लगाते हो एक रूल, ये भी कुछ बच्चे गलती से कर देते हैं कि इफ आई एम हैविंग cos इनवर्स x, अगर मेरे पास cos ऑफ sin इनवर्स x है, तो मैं उसको cos में कैसे कन्वर्ट करती हूँ, cos इनवर्स √1 - x स्क्वायर, वी कैन राइट यूजिंग ट्रायंगल रूल। तो ये यहाँ नहीं एप्लीकेबल है बेटा, याद रखिएगा, दिस शुडंट बी डन। ओके, व्हाट टू डू, यहाँ पे साइन दिख रहा है मुझे, एंगल को sin थीटा को cos में कन्वर्ट करना है, so obviously the quadrant rule will help you for it. So we can write cos inverse of cos pi/2 minus theta, as we know that cos 90 minus theta is sin theta, so we are getting the answer as pi/2 minus theta. अब यहाँ पे pi/2 minus क्या लिखेंगे हम, it is tan इनवर्स x, और अगर आपके पास पूछा है प्रूव दैट करके कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है, तो यू कैन राइट इट ऑल्सो एज pi/2 माइनस tan इनवर्स x क्या होता है, cot इनवर्स x। और अगर आपको एक स्टेप या 2 स्टेप्स कम करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके में आप इंस्टेड ऑफ पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, यू कैन पुट cot थीटा, क्योंकि ऊपर उसमें न्यूमरेटर में cos आ जाएगा, एंड यू विल बी गेटिंग थीटा इज इक्वल टू, क्या मिल जाएगा यहाँ पे थीटा, द और ऑप्शन इज थीटा क्या मिल जाएगा आपको, cot इनवर्स x, है ना। अब जब आप इसमें पुट करोगे तो यू विल बी गेटिंग cos इनवर्स ऑफ cot थीटा अपॉन कोसेक थीटा। जब आप वैल्यू पुट करेंगे देखिएगा आपको इतना मिलेगा, एंड अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद cos
इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपकी स्टेप बस एक दो स्टेप्स आपकी कम हो जाती हैं और आप डायरेक्टली आंसर ला सकते हैं। सो बाकी भी अगर बिगर क्वेश्चंस में भी इस तरह से हो जाए तो यू कैन कन्वर्ट दैट angle in terms of using quadrant rule. You can convert as per the desired angle and get your answer. ठीक है, so you are getting the answer as theta which is again cot inverse answer. So ultimately आपका दोनों का सेम ही आना, दोनों ही कंडीशन से, see this thing, दोनों ही कंडीशन से you are getting the same answer. ठीक है, so let's go for the next one. The next is in this type of question generally we used to get the questions in terms of tan inverse and so on. ज़्यादातर applicable वही हो जाते हैं. The next question is we are having tan root over a minus x upon a plus x. This is our question. अब आपने जहाँ देख लिया कि दोनों साइन हैं प्लस एंड माइनस, तो व्हाट विल वी पुट? हमारे पास ऑप्शन है ना, रूट दिया है, याद रखिएगा. इफ़ यू आर हैविंग रूट ओवर सो वी विल बी टेकिंग ओनली दिस ऑप्शन. यहाँ पे मुझे x की जगह क्या पुट करना है? यस करेक्ट, वी विल बी पुटिंग x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा. चल रही ओके, और कंडीशन साथ में दी रहेंगी, इवेल्यूएट करने के लिए दिया हुआ है. जनरली इन CBSE द सेम पैटर्न यू कैन गेट द आंसर. वी आर हैविंग द, अब पुट कर दिया. अब इसमें हम पहले थीटा भी निकाल के रख लेते हैं. थीटा कितना आएगा बताइए ज़रा आप. थीटा इज इक्वल टू, पहले तो हमने एक एक करके आप सब चीज़ें हटाएंगे ना यहाँ पे, तो यू आर गेटिंग x बाय ए. एक्स है, उसके पास a ले गए, देन इट हैज़ बिकम कॉस इनवर्स. अब 2 थीटा बच गया, तो 2 जब आएगा तो क्या बन जाएगा? दैट इज हाफ. रिमाइंड दिस थिंग, दिस इज नॉट x अपॉन 2a चिल्ड्रन. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, अभी वैल्यूज आ गई, पुट करके देखते हैं. व्हाट शैल आई गेट? दैट इज 10 ऑफ रूट ओवर a minus a cos 2 theta upon a plus a cos 2 theta. On solving, 10 root over 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta, and we are getting the answer as 10 inverse is okay. This is 10 inverse. हमने क्वेश्चन, हमारा आंसर नहीं आ पाएगा क्योंकि एंगल इसमें ले आ पाए जो हमको डिजायर्ड आंसर है. यहाँ पे करिए करेक्शन, दिस इज 10 इनवर्स ऑफ, ओके, बिकॉज वी आर लर्निंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. यहाँ कोई इनवर्स ही नहीं आया, यहाँ आ रहा है. सो आई एम गेटिंग 10 इनवर्स ऑफ दिस. अब यहाँ पे सॉल्व किया हमने, हमको मिला क्या? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा. अंडर जो भी कंडीशंस आपके पास रहेंगी, यू आर गेटिंग 10 इनवर्स ऑफ 10 theta, and the answer is theta, which can be written as 1 upon 2 cos inverse x by a. So this is your answer, children. The next one, next property I am using as the next question is tan inverse. This is a very important question. Tan inverse of root over 1 plus x square plus root over 1 minus x square upon root over 1 plus x square minus root over 1 minus x square, and value of x is lying in between -1 and +1. okay, ठीक है. तो लेट अस गो फॉर सॉल्विंग इट. अब देखिए फिर से रूट में ही टर्म्स दिख रहे हैं आपको, अलग अलग है, दे आर नॉट इन होल रूट, दे कैन बी इन डिफरेंट पैटर्न्स ऑल्सो. तो यहाँ में दिख गया रूट में है ना. सिंस द टर्म्स आर इन रूट, वी विल बी यूजिंग द सेम कंडीशन. वी विल बी टेकिंग एक्स स्क्वायर एज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पैटर्न. ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पे? लेट अस टेक, अब यहाँ ए की ज़रूरत नहीं है हमें, isn't it? वहाँ पे 1 दिया हुआ है, a होता तो a पुट करते. सो आई बी टेकिंग लेट x इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, एक्चुअली इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा. तो मुझे थीटा कितना मिल जाएगा? पहले आप इस तरफ लेके आए, दिस इज कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर एंड हाफ ऑफ इट. ओके,
So we are getting, on substituting we are getting the answer as tan inverse. अब आपको अब सब्सटीट्यूशन की आपको मालूम चल गया है कि क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं. तो लेट अस पुट वैल्यू एंड सॉल्व देम. वी आर गेटिंग द कंडीशन एज root over 1 plus cos 2 theta plus root over 1 minus cos 2 theta upon, this is 2 theta not a square, and root over 1 plus cos 2 theta minus root over 1 minus cos 2 theta, which will give you tan inverse of, ये आपको मालूम है 1 plus cos 2 theta आपने लिखा था. तो ऑन सॉल्विंग आई एम गेटिंग रूट ओवर 2 cos square theta plus root over 2 sin square theta upon root over 2 cos square theta minus root over 2 sin square theta. Let's solve the next step. root 2 सब में से कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा and we are left with tan inverse of cos theta minus sin plus sin theta upon cos theta minus sin theta. This is our value. अब क्या करना है आपको याद होगा इसको, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, जब cos और sin साथ में देखते हैं उसे tan बनाइए. So you will be dividing each and every term by cos theta. तो you are getting tan inverse of 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta, and on solving you are getting tan inverse of, कौन सा फॉर्मूला आ गया है, 10 pi by 4, ऊपर प्लस है तो प्लस थीटा. ठीक है, लेट्स पुट इट्स वैल्यू. तो वैल्यू क्या मिल जा रही है आपको, देखिए ज़रा. दिस इज pi by 4 plus theta and the value of theta we will be putting so that we can get the required answer. That is pi by 4 plus theta की जगह हमको क्या पुट करना है, that is half cos inverse x square. ये बोर्ड क्वेश्चन है, आ चुका है कई बार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. The next one is tan inverse of x plus root over 1 plus x square. Here x belongs to R is there, where x is a real number. Any real number can possess this answer. Let's go for it. बाकी सब जगह पे भी आपने जैसे देखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो x की वैल्यू अगर 1 हो गई तो नॉट पॉसिबल है ना टू सॉल्व, इसलिए वहाँ पे -1 to +1 एंड सो ऑन था. नाउ सी दिस थिंग, tan इनवर्स ऑफ x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज देयर. तो लेट अस सॉल्व. अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हम इसे 10 भी पुट कर सकते हैं और वी कैन पुट इट एज कॉट ऑल्सो. अब 10 पुट किया तो देखिए ज़रा, जस्ट एक रफ वर्क वी आर ट्राइंग टू डू. अब मैंने x को tan थीटा पुट किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो मुझे सेक थीटा मिल जाएगा. जब मैंने एलसीएम लिया आई एम गेटिंग 1 प्लस साइन थीटा. पर आपको मालूम है ना, आपको ज़्यादा फैमिलियर आप किससे हो, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपके पास होता है, isn't it? 1 माइनस साइन थीटा भी होता है बट लिटिल बिट लेंथियर ऑप्शन. तो हम कोशिश करते हैं कि प्लस के साथ 1 के साथ मुझे प्लस में साइन की जगह पे कॉस मिले. तो लेट मी डू दिस थिंग कि आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू कॉट थीटा. ओके चिल्ड्रन, कैसे अब आपको आगे समझ में आएगा क्यों हमने कॉट पुट किया. जस्ट सी दिस थिंग. अब आपने पुट किया तो थीटा क्या मिल जाना है आपको, इट इज कॉट इनवर्स एक्स. सो तो हमारा क्वेश्चन फिर से क्या बन जाएगा, वी विल बी गेटिंग tan इनवर्स ऑफ कॉट थीटा प्लस रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, which gives us what, that is tan inverse of cot theta plus cosec theta. And the next step will be tan inverse of sin cos में convert किया, I am getting 1 plus cos theta, और we can write अगर आप चाहें तो cos theta plus 1 लिखें upon sin theta. So यहाँ 1 plus cos theta का फॉर्मूला हमारे पास है ना, that is 2 cos square theta by 2, एंगल का हाफ हो जाएगा. So I'll be getting tan inverse of 2 cos square theta by 2, and here I'll apply the formula for sin 2 theta, which is what, 2 sin theta cos
theta in previous slide you were having this value. ठीक है, अब क्या मिल गया आपके पास में, देखिए ज़रा, you are getting tan inverse of cot theta by 2 मिल गया भैया आपको. अब क्या होगा, आपको मालूम है cot है तो उसे tan में कन्वर्ट आराम से किया जा सकता है. We will be getting the answer as tan inverse of tan pi by 2 minus theta by 2, and the answer is pi by 2 minus theta by 2. आप पुट कर दीजिए थीटा की वैल्यू, क्या मिल रहा है आपको बताइए. इट इज़ pi by 2 minus half of cot inverse x by cot inverse x. This is your answer. तो आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं इसका. अब ये देखिएगा, इसे tan इनवर्स x नहीं लिखिएगा इसे, क्योंकि सामने क्या लिखा हुआ है आपके पास में, यू आर हैविंग हाफ ऑल्सो बेटा. नहीं तो जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, पाई बाई 2 माइनस समथिंग इज द अदर पेयर, पर यहाँ पे हाफ भी है. सो वी विल नॉट, दैट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग हियर, वी विल बी कीपिंग इट लाइक दैट ओनली. दिस इज अवर आंसर. ठीक है, सो लेट्स गो फॉर द last pattern. There is many patterns are there of this condition, but आप प्रैक्टिस करिएगा कुछ क्वेश्चंस. जितने भी क्वेश्चन आप करते जाएंगे मैथ्स में वैरायटी तो आपको मिलती ही है. So let's one more pattern we are practicing here. We are trying to solve. The pattern is sin inverse. अब एक बार आ गया, tan हो गया, cos हो गया, तो sin आना ज़रूरी है. We are having the question as root over 1 minus x. Actually 1 plus x plus root over 1 minus x upon 2. ठीक है, यहाँ पे x आपका 0 and 1 के बीच में लाई कर रहा है. ठीक है, तो x should always be less than 1. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 minus x दिया है, x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 ना, नहीं तो रूट में नेगेटिव टर्म आ जाएगा. लेट्स गो फॉर द थिंग्स. अब देखिए फिर से प्लस माइनस है, लेट अस राइट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा. क्या मिल जाएगा आपको बोलिए ज़रा. वी आर गेटिंग साइन इनवर्स ऑफ, जब आपने इसको सॉल्व कर दिया 1 प्लस cos 2 थीटा लिखा तो आपको मिल रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. आपने 2 थीटा लिया है तो इट इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, प्लस दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा in root upon 2 we are having. Now see children, this is what? This is sine inverse of root 2 cos theta plus root 2 sine theta upon 2 can be written as root 2 into root 2. और सॉल्व कर लीजिए, क्या मिला, sine inverse of cos 1 by root 2 अलग से लिख देते हैं, cos theta plus 1 by root 2 sine theta. So I can apply that condition. देखिए ज़रा, मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, sin inverse of, मैंने sin theta पहले लिया, and 1 by root 2 I can write as pi by 4 plus cos theta, and this is sin pi by 4. Both are 1 by root 2. We can put the value. It is on our assumption. मुझे बाहर sin inverse दिख रहा है तो in the bracket I'll try to get the value of sin, है ना, try to get the values in terms of sin. तो मुझे मालूम है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, दैट इज साइन ए प्लस बी. सो आई विल बी अप्लाइंग दैट कंडीशन. आई एम गेटिंग द आंसर एज साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस पाई बाई 4, एंड आई एम लेफ्ट विद थीटा प्लस पाई बाई 4 विच इज, थीटा की वैल्यू पुट कर दो. व्हाट इज थीटा, यहाँ से निकाली आपने. लेट्स गो फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा. क्या मिलेगी यहाँ पे बताइए ज़रा. द वैल्यू ऑफ थीटा इज half cos inverse x. Let us put that value. तो पुट कर दी तो क्या मिला, दिस इज pi by 4 plus half cos inverse x. This is our answer. So in that manner, children, you can get many questions of this pattern. Just remind the basic concept of substitution, and all the questions can be solved very easily. Some more substitutions, some more properties I'll tell you in the next video. So let us meet again. Goodbye.